का है, शुभमन गिल का 17 रनों का है और तुषार देशपांडे ने वहीं पर अपना दूसरा ओवर समाप्त कर दिया। तो इस बड़े मुकाबले में आते हुए कहीं ना कहीं फाइनल का दबाव बना रहता है और फाइनल के दबाव में आते हुए दीपक चहर ने इस मुकाबले की पहली गलती कर दी है। अब इस मुकाबले में फाइनल का दबाव दोनों टीमों पर है और इसी के चलते गलतियां लगातार दोनों टीमों की तरफ से होंगी, लेकिन चेन्नई की तरफ से कहीं ना कहीं पहली गलती हो चुकी है कि शुभमन गिल का कैच छोड़ते हुए गिल को जीवनदान दे चुके हैं। इस मुकाबले में अगर आज के दिन पर चेन्नई की टीम जीत जाती है तो 5वीं बार अपना आईपीएल जीतते नजर आएगी। वहीं पर गुजरात की टीम अगर जीत जाती है तो दूसरी बार लगातार अपना आईपीएल जीतेगी। वहीं पर आपको यह भी बता दें, मौजूदा रूप में जो दो टीमें आमने सामने आई है ये पिछले 2 सालों से चैंपियन बनी टीमें हैं। 21 में चेन्नई ने चैंपियनशिप जीती थी आईपीएल की, 22 में गुजरात की टीम आईपीएल चैंपियन बनी थी और अब 2023 में आते हुए देखा जाए तो ये दोनों टीमों के बीच में आपस में मुकाबला खेला जा रहा है। अगली गेंद लेकर आते हुए दीपक चहर ऑफ स्टंप की लाइन में, गुड लेन की गेंद, आड़े बल्ले से तमाचा दे मारा, एक और कैच छूटा। इस बार गेंदबाज चहर के हाथों से गेंद जा रही है मिड ऑफ शॉर्ट कवर की दिशा में, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को तो रोका जाएगा लेकिन बल्लेबाज को सिंगल लेने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल आ चुका है या फिर देखना है बल्लेबाजों ने सिंगल भी पूरा कर लिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा खराब शुरुआत होती हुई। To all the sports fan out there, I hope you all are ready to make some money while enjoying your favorite games. And do you know what the best part is? You can earn some cash even if your team loses. Often you win even if you lose. Confused? Don't be. Let me tell you how it works. It's super interesting. First things first, head over to fairplay1.in. Their website is super easy to find. Provide a few basic details to register. Their UI is user friendly and you all can spot the register icon on the top right corner quite easily. We can register via WhatsApp or through the website itself. Once you have registered, it's time to log in. Now on the top bar, you can see 7 different options. First, starting off with in-play, here you can have an overview of everything that Fairplay has to offer. Second, next in line we have Sports Exchange. Here you'll see a list of live matches. Choose the match you want to make predictions on and you'll get all the details. And guess what? You can even predict every single ball. To place a bet, you'll see the back and lay options. If you think your team will win, click on back. And if you think it's going to lose, click on lay. Third, after this, we have Fantasy Pro. With this, you can make your own team by choosing 11 players and bases their performance in the match, you can earn points. Fourth, the fourth option that we have is Sportsbook. Here you can see the top matches, live matches and the upcoming events. Fifth, post that we have live casino, live card and slot games. In all 3 of these, you get multiple game options. You can choose the game of your choice, play and earn exciting rewards. Coming to the most important part, deposit. To start playing, you need to add funds to your profile. Just click on the deposit option right here and you will see various methods to deposit. Now, here's a welcome gift. 300% bonus on your first deposit and a 50% bonus on your second deposit. Exciting? Wait, it gets better. With Fairplay, even if you lose, it offers part of it back. This loss back applies to all the IPL matches, which means that you make predictions stress-free. Because even if you lose, you get 5% back just like that. Now, after you have won some cash, to withdraw it, all you have to do is provide your bank details here and the money will be transferred within 5 minutes. You can withdraw your winnings 24/7. So, what are you waiting for? Head over to fairplay1.in. Register now, start predicting and making big wins. And don't worry about losing, because on Fairplay, you will still win. चेन्नई की टीम के लिए इस बार ऑफ स्टंप के लाइन में डाली गई गुड लेन की गेंद थी। कदमों का इस्तेमाल करते हुए रिद्धिमान साहा ने आड़े बल्ले से गेंद को सीधी बाउंड्री पर चमाटा देना चाहा, लेकिन उस चक्कर में गेंद को काफी धीमे अंदाज में खेल गए और हवा में रखते हुए कैच वापस एक बार गेंदबाज चहर के हाथों में ही आ गया था। लेकिन उसमें भी अब गलती हो गई कि गेंदबाज ने एक और अपना कैच छोड़ दिया है। तो दोनों सलामी बल्लेबाजों के कैच दीपक चहर ने छोड़ दिए हैं और अब ये बड़ी परेशानी है गुजरात की टीम के लिए। वहीं पर बड़ा फायदा मिलता हुआ, एडवांटेज मिलता हुआ कि दोनों गलतियां अगर देखा जाए चेन्नई की तरफ से अभी तक इस मुकाबले में की गई है। एक ही खिलाड़ी दीपक चहर के हाथों में लगातार गेंदें कैच के लिए उड़ रही है और चहर के लिए इस बार हालांकि थोड़ा मुश्किल कैच था लेकिन कैच ड्रॉप माना जाएगा। अगली गेंद अब लेकर आते हुए ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे शुभमन गिल के लिए। बल्लेबाज शुभमन गिल ने सिंगल पूरा कर दिया है, पुल किया इस गेंद को। पटकी गई बाउंसर गेंद को पूरी तरीके से छाती पर आई गेंद को पुल करते हुए खेल दिया स्क्वायर लेग फाइन लेग पर। बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए और 2 रनों की मदद से स्कोर होता हुआ 41 रनों का बिना किसी नुकसान गुजरात की टीम का। शुभमन गिल पहुंचे 19 रनों पर अपने 11 गेंदों में और स्ट्राइक अपने पास ही बनाए रखेंगे।
तो शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज को अगर देखा जाए आप जीवनदान देते नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल क्षमता रखते हैं कि पूरी तरीके से आपको सजा देते नजर आएंगे उस गलती का, और वही कहीं ना कहीं चेन्नई के साथ आज हो सकता है। अगली गेंद ऑस्टन की लाइन में गुडलिन की गेंद स्क्वायर कट दे मारा, थर्ड मैन पर गेंद भाग चुकी है गैप में चौके के लिए, और चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए 45 रनों का हो जाएगा गुजरात की टीम का बिना किसी नुकसान। शुभमन गिल चौके की मदद से पहुंचे 23 रनों पर। ऑस्टन की थोड़ा बाहर डाली गई गुडलिन की गेंद थी, ज्यादा जगह नहीं थी, उसके बावजूद बल्लेबाज ने किसी तरीके से जगह बनाकर स्क्वायर कट दे मारा और स्क्वायर कट लगाते हुए गेंद को खेल दिया थर्ड मैन बाउंड्री के पार। तो ये पूरी तरीके से जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई है। इसी ओवर में कैच छूटा रिद्धिमान साहा का, इससे पहले शुभमन गिल का कैच छूट चुका है और अब शुभमन गिल बड़े रन बनाते चले जा रहे हैं 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। 12 गेंदों में 23 रनों पर पहुंच चुके हैं शुभमन गिल। आधा योगदान दिया है 45 रनों का गुजरात की टीम का। आज के दिन पर रिद्धिमान साहा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, उन्होंने भी लगभग 22 रन बनाकर 45 में से आधे रन बनाए हैं। अगली गेंद अब लेकर आएंगे ओवर द विकेट से, लेग स्टंप की लाइन में डाली गई बाउंसर गेंद पुल कर दी गई स्वीपर की दिशा में, बाउंड्री पर गेंद को रोका जाएगा इस बार कॉनवे की तरफ से। बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 46 रनों का बिना किसी नुकसान गुजरात की टीम का। मिडल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई पटकी गई बाउंसर गेंद एक और बार छाती पर चढ़ गई और बल्लेबाज शुभमन गिल अपना पसंदीदा शॉट लगाते नजर आए। 24 रनों पर पहुंच चुके हैं अपने सिंगल की मदद से और स्ट्राइक अप दे चुके हैं दाहिने हाथ के रिद्धिमान साहा के पास। लेकिन दीपक चहर के लिए इस मुकाबले में अगर देखा जाए ये मुकाबला बद से बदतर होता चला जा रहा है। पहले फील्डिंग के चलते अपने कैच छोड़े थे, अब इस ओवर में आते हुए 4 गेंदों में 8 रन दे दिए हैं, तो गेंदबाजी भी खराब हो रही है। गेंदबाजी It's super interesting. लेकर आने के लिए वापस तैयार, ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए रिद्धिमान साहा के लिए, जिनका कैच इस ओवर की पहली गेंद पर गेंदबाज ने छोड़ दिया था। मुश्किल कैच था, बाई तरफ कैच आया था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े मुकाबलों में इस तरीके से कैच पकड़े जा सकते हैं, लेकिन गेंद हाथ में चिपक नहीं पाई, तो फायदा मिला है, जीवनदान मिला है गुजरात की टीम के बल्लेबाज को। अब यहाँ पर फील्डिंग में परिवर्तन किए जा रहे हैं। 5 गेंद लेकर आने से पहले काफी समय लिया गया है चहर की तरफ से। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे, किसी भी हालत में अपनी टीम को पहली सफलता दिलाना चाहेंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के कैच छोड़ दिए गए हैं। अगली गेंद आती हुई ऑस्टन के बाहर, गुडलिन की गेंद स्कूप करते हुए फाइन लेग पर खेला है, खिलाड़ी बाउंड्री पर गेंद को रोकेंगे। इस बार गेंद को रोकने वाले खिलाड़ी देखे जाए तो पथिराना नजर आ रहे हैं, जिन्होंने डाइव लगाकर गेंद को बाउंड्री पर रोका और बल्लेबाजों को 2 ही रनों पर सीमित रखा है। स्कोर होता हुआ 48 रनों का गुजरात की टीम का बिना किसी नुकसान। मिडिल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलिन की गेंद को बल्लेबाज ने पूरी तरीके से स्कूप करते हुए पीछे की तरफ खेल दिया, पीछे की तरफ स्कूप करते हुए फाइनल की दिशा में खेला, जहां पर पथिराना ने गेंद को रोका और पथिराना जब गेंद को रोकते नजर आए तो बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन पूरे किए। चौके की कहीं ना कहीं कोशिश थी, लेकिन 2 रनों पर बल्लेबाजों को सीमित रहना पड़ा है। 48 का स्कोर होता हुआ गुजरात की टीम का रिद्धिमान साहा के 2 रनों की मदद से। अगली गेंद अब लेकर आएंगे दीपक चहर, दाहिने हाथ के रिद्धिमान के लिए ऑस्टन के लाइन में डाली गई गुडलिन की गेंद पुल कर दी गई, हवाई शॉट, लेकिन कैच लेने के लिए कोई खिलाड़ी दायरे के अंदर नहीं। गेंद जा रही है 30 गज के दायरे के बाहर, स्वीपर पर डेवन कॉनवे के हाथों में और बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर दिया है। स्कोर होता हुआ 49 रनों का गुजरात की टीम का बिना किसी नुकसान। तो आप देखेंगे गुजरात की टीम ने आज के दिन पर पहले 2 ओवरों में केवल 8 रन बनाए थे, धीमी बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ रन रेट में तेजी आती हुई और 49 रनों पर 5 ओवर की समाप्ति पर गुजरात की टीम पहुंच चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति जहां पर हो चुकी है, 49 रन गुजरात की तरफ से बना दिए गए हैं। 25 रनों पर रिद्धिमान साहा, 24 रनों पर शुभमन गिल और दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी 49 रनों की हो चुकी है। आज के दिन पर अब खास बात यही नजर आ रही है कि बड़े मुकाबले में आते हुए अनुभवी खिलाड़ी रिद्धिमान साहा के भी बल्ला चल रहा है। इससे पहले हमने देखा था लगातार प्लेऑफ के मुकाबलों में ज्यादातर रन यहां पर टॉप ऑर्डर से शुभमन गिल के बल्ले से आए थे, लेकिन आप देखेंगे आज के दिन पर जहां पर 49 रन हो चुके हैं, तीक्ष्णा को गेंदबाजी तो दी जा रही है, लेकिन 49 रनों में से गुजरात की टीम के लिए रिद्धिमान साहा ने 25 रनों का योगदान दिया है, शुभमन गिल ने 24 का योगदान दिया है। अच्छी बात हम मानेंगे, चेन्नई की तरफ से अभी तक केवल यही नजर आई है कि कोई एक्स्ट्रास के रन नहीं दिए हैं। काफी आसार बढ़ जाते हैं फाइनल जैसे मुकाबलों में एक्स्ट्रास के रन आने के, और वो काफी महंगे भी पड़ सकते हैं। लेकिन चेन्नई की तरफ से 2 गलतियां जरूर हो चुकी है कि 2 कैच दोनों सलामी बल्लेबाजों के दीपक चहर ने छोड़ दिए। पहली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार महेश तीक्ष्णा, ओवर द विकेट से लेकर आएंगे अपनी गेंदबाजी। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलना चाहा, सिले मिड ऑन पर जाते हुए गेंदबाज ने खुद जाकर गेंद को रोका है। तीक्ष्णा गेंद को रोकते नजर आए, डॉट बॉल आ चुका है। रिद्धिमान साहा 25 रनों पर बने रहेंगे, 18 गेंदों में सामना करते रहेंगे लगातार गेंदबाजी का। अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार तीक्ष्णा, गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर द विकेट से देखना है कि यहाँ पर बल्लेबाज को परेशान कर पाएंगे, क्या गेंद घूम पाएगी। अगली गेंद आती हुई ऑस्टन की लाइन में गुडलिन की गेंद पीछे हटकर आड़े बल्ले से चमाटा दे मारा, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर, मिस टाइम शॉट के रूप में बाउंड्री पर गेंद को रहाने की तरफ से रोका गया है। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 50 रनों का गुजरात की टीम का बिना किसी नुकसान। रिद्धिमान साहा पहुंचे 26 रनों पर 19 गेंदों में और स्ट्राइक अप दे चुके हैं सेड बल्लेबाज शुभमन गिल के पास।
लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को गलती से खेल गए रिद्धिमान साहा पिछली गेंद पर, जहां पर खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ पर, अपने बल्ले का काफी निचला हिस्सा दे गए, बल्ले का मुंह बंद कर गए, जिसके चलते गेंद लॉन्ग ऑफ पर जाने के बजाय लॉन्ग ऑन पर चली गई और बल्लेबाज को केवल सिंगल लेने का मौका मिला है। लेकिन तीक्ष्णा जब आए हैं, देखना है कि रन रेट में राहत आएगी। अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में गुडलेन की गेंद स्क्वायर कट दे मारा, मिस फील्डिंग हो गई है, पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है डीप पॉइंट पर चौके के लिए। मिस फील्डिंग करने वाले दायरे के अंदर गेंद को अपने हाथों से छोड़ दिया और यहां पर बहुत गुस्सा है आंखों से देखते हुए कप्तान एमएस धोनी लगातार डेवॉन कॉनवे की तरफ। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई ये गुडलेन की गेंद थी, बल्लेबाज ने स्क्वायर कट दे मारा था और स्क्वायर कट करते हुए गेंद को जब डीप पॉइंट की दिशा में खेला गया तो गेंद अगर देखा जाए तो पॉइंट के खिलाड़ी की तरफ से रोकी जा सकती थी। दायरे के अंदर बल्लेबाज को 0 रन पर सीमित रखा जा सकता था, लेकिन वहां पर अब चौका आ चुका है। अगली गेंद अब लेकर आएंगे तीक्ष्णा ओवर द विकेट से। शुभमन गिल के लिए कदमों का इस्तेमाल, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बल्ले के नीचे गेंद को लेते हुए उठा दिया है चौके के लिए। एक टिप्पे पर गेंद सीमा रेखा के पार गई, वरना छक्का भी हो सकता था, लेकिन ये मिडिल एक्सट्रम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए इनसाइड आउट जाकर बल्लेबाज ने तकनीक का इस्तेमाल किया, हवाई शॉट लगाया बेझिझक अंदाज में और चौका प्राप्त कर चुके हैं। तो तीक्ष्णा ने भी शुरुआती 2 गेंदों पर केवल 1 रन दिया था, लेकिन फिर अपनी अगली 2 गेंदों पर 2 चौके देकर 8 रन कुल मिलाकर दे दिए हैं और 58 रनों का स्कोर गुजरात की टीम का हो चुका है। 5वीं गेंद अब लेकर दौड़ेंगे तीक्ष्णा। लेग स्टंप की लाइन में गुडलेन की गेंद स्वीप कर दी गई, फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद छक्के के लिए जा सकती है। अंपायर बाउंड्री चेक करना चाहेंगे, लेकिन अंपायर ने चौके का इशारा कर दिया है। फाइन लेग की दिशा में बल्लेबाज शुभमन गिल ने स्वीप करते हुए हवाई अंदाज में गेंद को खेला और स्वीप करते हुए चौका हासिल कर चुके हैं। गेंद काफी समय तक हवा में थी, बाउंड्री किनारे पर अपना पहला टिप्पा लेते नजर आए, लेकिन इस ओवर का अब ये 3रा चौका आ चुका है। इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर केवल 1 रन आया था, लेकिन अगली 3 गेंदों पर 3 चौके आने के बाद ओवर की 5 गेंदों पर 13 रन हो चुके हैं और शुभमन गिल 36 रनों पर पहुंचते हुए 225 के स्ट्राइक रेट के साथ 16 गेंदों का केवल अभी तक सामना किया है। तो बहुत ही बढ़िया पावर प्ले की शुरुआत होती हुई गुजरात की तरफ से। ये खतरनाक शुरुआत है, 60 से आगे स्कोर है और सारे विकेट सुरक्षित बने हुए हैं। 26 पर साहा, 36 पर गिल और इस समय पर शायद अंपायर बाउंड्री चेक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखना है, नो बॉल चेक कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज को रोकने के लिए कहा गया है। बाउंड्री चेक की जा रही है, देखा जा रहा है कि क्या ये गेंद सीधा बाउंड्री लाइन पर जाकर गिरी है। अंपायर ने काफी कॉन्फिडेंट तरीके से चौका दे दिया था, लेकिन अब उसके बाद से अब लगातार चेक जारी है, इसमें छक्का आ सकता है। तो साहा जो कि अब 26 पर हैं, गिल को अब यहाँ पर 38 पर जाने का मौका मिलेगा या वो अब 36 पर नाबाद बने रहेंगे। यहाँ पर चौके का इशारा अंपायर का है, तो फील्डिंग यहाँ पर करने वाले कोई खिलाड़ी उस दिशा में नहीं थे, तो वो बता नहीं पाया। थर्ड अंपायर ने देखा है तो बाउंड्री पर गेंद नहीं गिरी है, थोड़ी अंदर गिरी है। अगली गेंद यहाँ पर गिल के ड्राइव किया कवर पर, खिलाड़ी के हाथों में एक और डॉट आता हुआ यहाँ पर ओवर द विकेट से आकर डाली गई। महेश तीक्ष्णा की गेंद बल्ले के नीचे थी, ड्राइव करते हुए खेल गए शॉर्ट कवर पर। मोइन अली ने गेंद को रोका है और इसी के साथ यहाँ पर स्कोर 62 रनों का है 6 ओवरों के बाद। 13 का अब ऐसा ओवर रहा ये जिसमें अब लगातार रनगति तेज होती रही। 13 रन के साथ तीक्ष्णा महंगे साबित हुए और इस समय पर देखा जाए तो रिद्धिमान साहा जो कि अब 26 रनों पर हैं, अगले ओवर में स्ट्राइक पर आ जाएंगे। लेकिन बहुत ही दमदार शुरुआत है ये एक फाइनल मुकाबले में आते हुए गुजरात के प्लेयर्स की तरफ से, जिसमें अब सुदर्शन को आना बाकी है। विजय शंकर अब बल्लेबाजी से आक्रामकता बनाए रख सकते हैं। हर एक खिलाड़ी जो मैदान पर आएगा वो अब कोई धीमी बल्लेबाजी से पारी बनाने की नहीं सोचेगा, वो पारी तेज करने की ही सोचेगा और इसमें यहाँ पर छक्कों और चौके की लगातार संख्या बढ़ती जाएगी और खोने के लिए जहाँ पर अब कुछ नहीं है यहाँ पर गुजरात के पास, क्योंकि पावर प्ले में दबाव बना दिया है चेन्नई के सामने। 2 कैच छोड़े गए हैं दीपक चहर के लिए। पहला कैच आसान था शुभमन गिल का, पैरों पर घुटनों के बल बैठे थे, उसके बाद से हाथ में आई गेंद थी, रेगुलेशन सा कैच था, उसके बाद से रिटर्न कैच का है जो मुश्किल था, लेकिन वो भी अगर ले लेते तो अपनी टीम को राहत दे सकते थे। तो दोनों कैच एक दिशा में दीपक चहर की तरफ जाते, वो कैच छूट जाने के बाद से दोनों खिलाड़ी जीवनदान के साथ आगे बढ़ते हुए और अब आ चुके हैं जडेजा। शुरुआती गेंद जडेजा की पैड पर फ्लिक कर दी गई, पुल कर दी गई पीछे फाइन लेग पर। बल्लेबाज को यहाँ पर 2 रन लेने का मौका बना हुआ है। 2 रनों के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा धोनी के हाथों में थ्रो या फिर एक ही रन यहाँ पर पूरा किया गया है और यहाँ पर देखा जाए तो 1 रन पूरा करने के बाद तुषार देशपांडे का ये थ्रो है जो बल्लेबाजों को दूसरा रन लेने से रोके रख चुका है। बल्लेबाज लेकिन यहाँ पर खराब लाइन पर आई गेंद पर से एक आसान सिंगल यहाँ पर पूरा कर चुके हैं। अगली गेंद शुभमन के लिए, बल्लेबाज ने पैड पर से फ्लिक कर दिया, खेल दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। जमीनी तौर पर सिंगल के बाद डबल चाहते हैं, लेकिन एक और बार थ्रो आता है और खतरे में यहाँ पर खिलाड़ी रन आउट हो सकते थे। शुभमन गिल दूसरा रन यहाँ पर पूरा करने के लिए, यहाँ पर डायरेक्ट हिट आई है लेकिन ये गिल नहीं, लेकिन साहा है जो कि खतरे में है, खतरे में है ये। यहाँ पर देखे जाए तो नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज शुभमन गिल ने यहाँ पर दूसरे के लिए कॉल दिया था, फिर साहा दौड़े हैं दूसरे के लिए और नॉन स्ट्राइकर पर तुषार देशपांडे का ये थ्रो था जो अब कलेक्ट किया है रविंद्र जडेजा ने, विकेटों पर मारा है, रन आउट चेक किया जा रहा है। साहा अपने आप को नॉट आउट बता रहे हैं और ये नॉट आउट हैं क्योंकि जडेजा के हाथों से गेंद ही बाहर निकल चुकी है। जडेजा ने जब गेंद विकेटों पर मारनी चाहिए है तो तब तक उनके हाथों से गेंद बाहर निकलती हुई फिर उनके हाथ विकेटों पर लगते हुए नजर आए हैं। तो रिद्धिमान साहा भी तब तक बल्ले के साथ अपने क्रीज के अंदर आ सकते थे, लेकिन ये टच एंड गो मामला जहां बना हुआ है, अंपायर का नॉट आउट का फैसला यहां पर आता हुआ
रनआउट चेक किया गया, साहा नॉट आउट हैं और हड़बड़ाए हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं चेन्नई के। अगली गेंद लेकर आते हुए जडेजा अराउंड द विकेट से, बल्लेबाज ने एक और बार गेंद को आसानी के साथ जमीनी तौर पर फ्लिक करते हुए सिंगल के लिए खेल दिया है। दूसरा 4 होंगे, लेकिन फिर इस बार खतरा नहीं बोलेंगे क्योंकि एक और रनआउट का खतरा बन सकता था। सर्कल के अंदर से ही दूसरा रन चाह रहे थे, लेकिन 7वें ओवर में 66 रन बिना नुकसान गुजरात का स्कोर बना हुआ है। तो इस समय पर देखा जाए हार्दिक पांड्या पैड्स लगाकर तैयार हैं, कोच गैरी कर्स्टन के साथ बैठे हुए हैं, डगआउट से दूर बैठे हैं। देखना है कि वही आते हैं या फिर सुदर्शन को भेजा जाता है। लेकिन जडेजा अपनी अगली गेंद के साथ दाहिने हाथ के साहा के लिए अगली गेंद पर रन नहीं आ पाएगा। एक और डॉट आता हुआ, पहला डॉट इस ओवर का पावर प्ले के बाद से अब देखा जाए दूसरा डॉट है। बल्लेबाज ने पीछे हटकर उठाना चाहा था, किनारे पर गेंद शॉट थर्डमैन खिलाड़ी के हाथों में चली गई है। रन लेने का कोई भी यहाँ पर देखा जाए मौका नहीं बना रहा। विकेटों की लाइन में डाली गई है, लगभग 98 की गति से गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज का किनारा सीधा उनके लिए यहाँ पर खतरा बन सकता था, लेकिन शॉट थर्डमैन के खिलाड़ी ने थ्रो कर दिया था। इसी बीच अगली गेंद पर बल्लेबाज एक और सिंगल प्राप्त करेंगे। ऑस्ट्रेम की लाइन से गुडलैंड की गेंद को बैकफुट पर बने रहकर फ्लिक लगा दिया, लेग साइड में शॉट मिड विकेट से थ्रो आएगा। उससे पहले यहाँ पर सिंगल पूरा होता और थ्रो करने वाले खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ही थे। गेंदबाजी भागे शॉट मिड विकेट तक और वहां से डायरेक्ट हिट मारना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर पर, लेकिन गेंद विकेटों पर नहीं लग पाई है। तो 67 का स्कोर है फिलहाल गुजरात टाइटंस का। 7वें ओवर में गेंदबाजी से वापस लौटेंगे रविंद्र जडेजा, इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ आने के लिए तैयार हैं। ऑन द विकेट से लगातार गेंदबाजी जारी है। बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक पर वापस शुभमन गिल आते हुए आगे आकर ड्राइव करने के लिए गए। धोनी ने स्टंपिंग की है और यहाँ पर अपील होती हुई थर्ड अंपायर की तरफ निर्णय भेजा गया है। शुभमन गिल को आउट करने के लिए एमएस धोनी ने रविंद्र जडेजा की घूमी हुई गेंद पर से स्टंपिंग की और यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है, जहां थर्ड अंपायर की तरफ अब फैसला भेजा गया है। जडेजा ने पूछ लिया धोनी से कि क्या आउट हो चुके हैं खिलाड़ी। धोनी ने कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन हाँ कह दिया, हामी भर दी है। तो शुभमन गिल का विकेट यहाँ पर खतरे में आता हुआ रविंद्र जडेजा मान रहे हैं कि उन्हें विकेट मिल चुका है। धोनी यहाँ पर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और खुशी मनाना शुरू कर दिया है। सीएसके के प्लेयर्स ने टिप्पा खाने के बाद ये गेंद बाहर निकली, ड्राइव करने के लिए बल्लेबाज गए, बल्ले का किनारा भी हो सकता है। अल्ट्रा एज में किनारा भी जांचा जाएगा। ये मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट होने वाला है गुजरात के लिए। अल्ट्रा एज में किनारा तो नहीं, लेकिन गेंद सीधा जहां कीपर के हाथों में जा रही है स्टंपिंग करने के लिए। धोनी ने यहाँ पर तेज तर्रार अंदाज में बेल्स उड़ाई है। देखना है क्या सही में समय पर बेल्स उड़ाते नजर आए हैं, क्योंकि बल्लेबाज का पैर क्रीज के बाहर फिलहाल तो नजर आ रहा है कि अंदर आ पाया नहीं आ पाया। शुभमन गिल बहुत बड़े अंतर के साथ आउट होते हुए। स्क्वायर लेग अंपायर का यह सीधा निर्णय होना चाहिए था, लेकिन फिर यहाँ पर एमएस धोनी ने जादू कर दिया है। फाइनल मुकाबले में सामने वाली टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज को अपनी तरफ से स्टंप आउट करते हुए एमएस धोनी का असर इस मुकाबले पर आता हुआ। शुभमन गिल जो 3 रन पर ड्रॉप कर दिए गए थे, आगे बढ़ते हुए 39 तक पहुंचे। गुस्साए हुए तरीके से मैदान के बाहर जाते हुए शुभमन गिल इस समय पर आगे ड्राइव करते हुए ऑस्टन की लाइन की फुल लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज के लिए गेंद है 67 पर। सुदर्शन यहाँ पर पारी आगे बढ़ाएंगे नंबर 3 पर, उनके निर्धारित स्थान पर फिलहाल भेजे जा पा रहे हैं और 28 रन पर जहां साहा बैटिंग कर रहे हैं। शुभमन गिल का बड़ा विकेट यहाँ पर चेन्नई को मिलता हुआ। तो शुभमन गिल भी यहाँ पर आज नंबर 7 जर्सी में बने हुए थे, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर अब बैटिंग से अर्धशतक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे थे, लेकिन विकेट के पीछे से नंबर 7 की जर्सी ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया है। नए बल्लेबाज साई सुदर्शन है, जो कि फिलहाल 0 पर है बैटिंग करते हुए। पिछले मैच में गिल का साथ देते हुए 43 रन तक पहुंच चुके थे। तकनीकी बल्लेबाज यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों का अच्छा सामना कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब मैच में रुख बदलता हुआ मुकाबले का, जिसमें शुभमन गिल के आउट होने के बाद फिर किस प्रकार से बैटिंग करेगी गुजरात की टीम, ये इनके लिए अब यहाँ पर परीक्षा की घड़ी बनती हुई। शुभमन गिल ने भी यहाँ पर जीवन दान का फायदा उठाते हुए काफी बढ़िया रन बना, लेकिन अंत में यहाँ पर जब एक और मौका बना तो उसमें धोनी ने कोई गलती नहीं की, जो कि वो नहीं करते हैं। लगातार देखा जाए चौतरफा ध्यान बना हुआ था पैरों पर, और जैसे ही बल्लेबाज ने थोड़ी गलती की, थोड़ी सी चूक की, उसे यहाँ पर पूरी तरीके से अब स्टंप आउट कर दिया गया है। और उसके बाद से अब हार्दिक पांड्या विजय शंकर का आना होने वाला है। गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे यहाँ पर स्पिन गेंदबाज महीश तीक्ष्ण आएंगे। शुरुआती गेंद पर सिंगल दे जाएंगे बल्लेबाज को। रिद्धिमान साहा ने क्रॉस करते हुए सिंगल निकाल लिया है। लेग स्टंप की लाइन से गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया था, बल्लेबाज इस पर से सिंगल निकालते हुए क्रॉस कर चुके हैं और इसी के साथ यहाँ पर स्ट्राइक पर वापस आते हुए नजर आएंगे अब नए बल्लेबाज साई सुदर्शन नजर आएंगे। देखना है अब यहाँ से आगे खेल किस प्रकार से बढ़ पाता है, जिसमें पार्टनरशिप की एक और बार आवश्यकता होगी। लेकिन बहुत बढ़िया शुरुआत है ये इस तरीके फाइनल मुकाबले में आते हुए। बिना नुकसान ये टीम 67 रनों तक आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर इस टीम के लिए देखा था सामने से रविंद्र जडेजा एक खतरा बनते नजर आए। गेंद घुमा गए, तीक्ष्णा वापस आएंगे गेंदबाजी लेकर। फिलहाल बाएं हाथ के साई सुदर्शन के लिए अगली गेंद पर एक और सिंगल पैड पर से लेग स्टंप की लाइन से फ्लिक मारते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को खेल दिया। दूसरा चाहते हैं, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं, देखना है पूरा नहीं हो पाएगा तो वापस